Good morning students. Welcome to the third part of your lesson Crop Production and Management, and this is me too, your science teacher. Students, as in our previous two classes we were dealing with the lesson Crop Production and Management. In the first class we have seen about the two agricultural implements, the practices, and in the second class also we have seen another two agricultural practices, and today we'll be talking about the rest three agricultural practices. As I have already told you, there are 7 steps in our agricultural practices, that is the preparation of soil, the sowing, the providing manure and fertilizer, the irrigation, protection from weeds, the harvesting, and finally the storage. So in this session we'll be talking about the protection from weeds and what is harvesting, and finally the storage. So students, let us have a quick look on what we studied in our previous class. We have talked about what are manures and fertilizers, the advantages of using manure, the difference between fertilizer and manure, the crop rotation, what is fallowing, what is irrigation. As I have told you, there are two types of irrigation, the traditional types of irrigation and the modern types of irrigation, and we have also discussed that the modern type of irrigation is much more better than the traditional type of irrigation. Now, in today's topic, we are going to see what are weeds, what is weeding, what are the methods of weeding. Number one is the manual method, next is the chemical, then the mechanical weeding, then we'll see what is harvesting, then we'll talk about what is threshing, what is winnowing, and how the food grains are required to be proper storage, and finally we'll see what is animal husbandry. So students, first we'll talk about what are weeds. We'll see what are weeds. Students, the unwanted plants or the wild plants which grow along with the cultivated crops are called weeds. बच्चों, वीड्स को हम हिंदी में कहते हैं खरपतवार, यानी ये खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार वे पौधे हैं, वे अवांछित पौधे हैं जो हमारे फसलों के साथ में उग जाते हैं। बच्चों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी गमले लगाए होंगे, फूल के गमले। जब आप देखेंगे कि आपके फूल के गमलों में आपके फूल के पेड़ के अलावा कुछ घास फूस या जंगली पौधे उग आते हैं ना, उससे ही हम कहते हैं वीड्स या खरपतवार। वैसे ही बड़े बड़े खेतों में जब हम धान की फसलें, जब हम मक्का की फसलें, जब गेहूं की फसलें लगाते हैं, तो हमारे अच्छे फसलों के साथ और भी अनेक तरह के अवांछित पौधे या जो पौधे जो हमें ज़रूरत नहीं है वे उग आते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। सो नेक्स्ट we'll see what is weeding. What is weeding? What is weeding? Students, the process of removal of weeds is called weeding, and this is the 5th step in your agricultural practices. As I have already discussed that in our previous class, in our previous the crop production and management part 1, we have seen the 2 agricultural practices, that is the preparation of soil and sowing, and in our second part, what is manure and fertilizer, why it is necessary to provide manure and fertilizer in our crops, and again we have seen what is irrigation. So 4 steps already we have discussed in our part 1 and part 2. So weeding is the 5th step of agricultural practices. बच्चों, हिंदी में weeding को कहते हैं खरपतवार को हटाना, यानी निराई। निराई किसे कहते हैं? वे प्रक्रिया जिसमें हम खरपतवार को अपने अच्छे फसलों से, अपने जो खेत है उसमें से निकाल के हटा देते हैं, उसे हम कहते हैं वीडिंग या निराई, और हमारा ये कृषि पद्धतियां का 5वां चरण है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, we'll talk about the importance of weeding. Importance of weeding. Importance of weeding. Students,
Let me explain you why it is important to do weeding or why it is important to remove the unwanted plants in our fields which grows with our crops. ये वीडिंग यानी निराई यानी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, weeds compete with the crop plants for water, for nutrients, for space and light. बच्चों, जब हम अपने खेतों में धान के पौधे, मक्का के पौधे या कोई भी पौधे जब हम लगाते हैं या फसल करते हैं तो हमारी अच्छी फसलों के साथ कुछ जंगली पौधे उगाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब हम अपने फसलों को, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हमने फसलों को खाद दिया, हमने फसलों को फर्टिलाइजर दिया, हमने फसलों की सिंचाई की यानी हमने उसे पानी दिया। अब ये खरपतवार क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे फसलों के साथ हमारे फसलों को जो दिया गया पानी है यानी जल है, जो न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है, स्पेस और इवन प्रकाश के लिए भी स्पर्धा या कंपीट करता है। और हमने जो अपने फसलों को जो न्यूट्रिएंट्स दिया है, जो जल दिया है, वो जंगली पौधे भी इसे लेके हासिल कर लेते हैं और हमारे अच्छे पौधों के लिए जल और जो पोषक तत्व है, जो स्पेस है, जो लाइट है, उसकी कमी हो जाती है। Then they affect the growth of the crops. बच्चों, आपने देखा होगा आपके गमले में, मान लीजिए कि आपने एक रोज का पौधा लगाया। अब आपके रोज के पौधे के साथ में जंगली पौधे भी गमले में उग आए हैं। अगर आपने इसे उखाड़ फेंका नहीं तो क्या होगा? आपका जो रोज का पौधा है ना, वो अच्छी तरह से नहीं ग्रो कर पाएगा, which means the weeds they affect the growth of the crop. Then they interfere in harvesting. बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमारे जो धान के फसलें हैं या गेहूं के फसलें हैं, उसके साथ में अगर ये खरपतवार या जंगली घास फूस उग आएंगे और जब हमारा जो फसल पक जाएंगे तब क्या होगा? हमने अगर खरपतवार को नहीं हटाया तो ये घास फूस ये बढ़ने के बाद इसमें भी सीड्स, बीज आएंगे और ये भी पक जाएंगे। और जब हम अपने फसलों की कटाई करेंगे तब क्या होगा? हमारे अनाज के साथ ये जो घास के जो सीड्स है, बीज है, ये हमारे अनाज के साथ में इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए हमें हार्वेस्टिंग करने के समय ये मुश्किल होगा। सो इस वजह से भी हमें खरपतवार की निराई करना चाहिए यानी उसे हटाना चाहिए। Then the fourth reason of weeding is some weeds may be poisonous for animals and human beings. तो बच्चों, कुछ घास फूस के जो जंगली पौधे हैं उसके बीज वो जानवरों और हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जहरीला हो सकता है, इसीलिए उसे हटाना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल सी what are the methods of weeding. Students, there are 3 important methods of weeding. Methods of weeding. Number 1 is manual. Number 1 is manual weeding. So, what is manual weeding? In this method, the weeds are uprooted by the hands. तो बच्चों, मैनुअल वीडिंग में होता ये है कि हम अपने हाथों से इन अवांछित पौधों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे इन अवांछित पौधों को उखाड़ा जा सकता है। बच्चों, इसको जब हम खींचेंगे ना तो ये ज़मीन से अपरूटेड हो जाएगा, निकल के आ जाएंगी और उसे हम फेंक देंगे, या इसे हम एक गड्ढा खोदकर उसमें इकट्ठा भी कर सकते हैं और ये सड़ने के बाद में क्या बन जाएगा? यस, सड़ने के बाद में ये खाद बन जाएगा। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि खाद कैसे बनता है, ये पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है, सड़ने के बाद ये खाद बन जाती है। तो इसे हम आसानी से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं हाथों से। दिस इज नोन एज मैनुअल वीडिंग। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट, सेकेंड इज मैकेनिकल वीडिंग। मैकेनिकल
वीडिंग। इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वीडिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम खरपतवार को खुरपी के मदद से या हंसिए के यानी सिक्कल के मदद से या कुछ मशीन्स है जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो, इन मशीनों के मदद से भी हम खरपतवार को, अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंक सकते हैं और हम इसे अपने फसलों में उगने से बचा सकते हैं। एंड नंबर थर्ड, the final methods of weeding, number third is weeding using chemicals. Using chemicals, बच्चों कुछ रसायन होते हैं जिसे हम 2,4-D कहते हैं। इन रसायनों का उपयोग हम खरपतवार को नाश करने में कर सकते हैं, इसीलिए इन रसायनों को हम खरपतवार नाशी भी कहते हैं। Which means students, the chemicals which are used to destroy the weeds are known as weedicides. बच्चों ये खरपतवार नाशी ये जो रसायन है ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, इसीलिए इसको यूज करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इससे पहले पानी में घोल लेते हैं, देन हम स्प्रे करते हैं। जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो, स्प्रे करते वक्त हमें अपना चेहरा ढककर रुमाल से या कुछ कपड़े से अपने चेहरे को ढक के रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, लेट अस हैव अ लुक ऑन अ स्मॉल वीडियो क्लिप टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट वीडिंग्स एंड द प्रोसेस ऑफ वीडिंग्स। खरपतवार से सुरक्षा। बच्चों, यह कृषि पद्धतियाँ का 5वां चरण है। जब हम खेतों में कोई फसल उगाते हैं तो वहाँ पर हमारे फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। बच्चों, इन अवांछित पौधों का हमारे फसल के साथ उगना हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारे पौधों के जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश के लिए कम्पीट या स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फूड ग्रेन्स की क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं। फाइनली क्रॉप यील्ड को भी कम कर देते हैं। इसलिए खरपतवार को हटाना जरूरी होता है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने का सही समय है उनमें फूल एवं बीज बनने से पहले का होता है। बच्चों, निराई के तरीके हैं। निराई के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पहला है हाथों से उखाड़कर फेंकना। बच्चों, हम इसे आसानी से उखाड़कर फेंक सकते हैं। इसे खींचेंगे तो इसकी जड़ी मिट्टी से उखड़ जाएगी। दूसरा, इसे हम खुरपी द्वारा भी उखाड़कर फेंक सकते हैं। तीसरा, सीड ड्रिल या मशीन के मदद से भी हम खरपतवार को हटा सकते हैं। चौथा है रसायनों का उपयोग से भी हम खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। उदाहरण के लिए है 2,4-D। बच्चों, ये 2,4-D एक हार्मफुल केमिकल्स है, जिनका उपयोग करने के समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इसे उपयोग करते समय हमें अपने चेहरे को, अपने मुंह को ढक कर रखना होगा और इस केमिकल को कुछ भाग जल से मिलाकर हम इसे खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। ये सिर्फ खरपतवार को नाश करेंगे, हमारी फसलों को नहीं, इसलिए हम इसे खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी वे केमिकल्स जो खरपतवार को नाश करने में उपयोग किया जाता है, उसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। Next students, we'll talk about the harvesting. The next step, this is the 6th step in agricultural practices, that is the harvesting. यानी बच्चों, हार्वेस्टिंग को हिंदी में कहते हैं कटाई। What is कटाई? What is harvesting? The cutting of crops after it is mature is called harvesting. यानी बच्चों, हमारे खेतों में जब फसलें पक जाते हैं, फसलों की कटाई को हम फसलों को काटना, इसे हम कटाई या हार्वेस्टिंग
कहते हैं और ये हमारे कृषि पद्धतियाँ का छठा चरण है। एंड इसे हम हाथों से, जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो, हसिया यानी सिक्कल के मदद से हम उसे काट के निकाल सकते हैं, या मशीन होता है जिसे हम हार्वेस्टर मशीन कहते हैं, इसकी मदद से भी हम फसलों को काट सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं धान की फसलें होती है मेजरली, एंड धान की कटाई कैसे होता है, या तो हसिये से काट के, बहुत सारे इकट्ठा लोग इकट्ठे होके हसिये से काट के इसे कटाई करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास में अंडमान में हार्वेस्टर मशीन नहीं है, लेकिन मेनलैंड में बड़े बड़े खेतों को कटाई करने के लिए हार्वेस्टर मशीन की यूज किया जाता है। सो इस कटाई की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए देखते हैं हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप। कृषि पद्धतियां में छठा चरण है कटाई, या भारत के हर कोने में किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खुशी का पर्व है, क्योंकि ये किसानों के 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद आता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ पर्व भी जुड़े हैं, जैसे दिवाली, होली, बिहू आदि। खेतों में फसल पक जाने के बाद उसे हाथों द्वारा या मशीन से काटना कटाई कहलाता है। और उदाहरण के लिए हैं जैसे धान या गेहूं के फसलें। कटाई में या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे नीचे से काट लेते हैं। ज़्यादातर लोग दरांती या हसिये से हाथों द्वारा या हार्वेस्टर मशीन द्वारा किया जाता है। Students, the next step is threshing. The next step is threshing. Now, what is threshing? बच्चों, फसल के कटाई होने के बाद इसके साथ में अनाज और फसल की जो आधी कटी हुई पेड़ है ना, जो डंडी है ना, वो रह जाती है। तो इससे हम अनाज को हमें फसलों की कटी हुई जो आधा हिस्सा है उससे हमें अलग करना होता है, और ये अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff एंड दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स इट इज नोन एज थ्रेशिंग। इसे हम दो तरीकों से अगेन कर सकते हैं। पहला है मैन्युअली, यानी हम धान के कुछ गठरी को लेके हम उसे पीट कर अनाज को डंडी से अलग कर सकते हैं, जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। या लोकली अंडमान में होता क्या है, धान की गठरी को रखते हैं, उसके ऊपर बैल चलते हैं, जानवर चलते हैं। तो जानवर के चलने से क्या होता है, वो अनाज जो है डंडी से अलग हो जाता है टूट के। तो इस तरीके से भी हम थ्रेशिंग कर सकते हैं। अगला है बच्चों एक मशीन, थ्रेशर मशीन होता है। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ में एक नई मशीन का आविष्कार हुआ है जिसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस मशीन से, कंबाइन मशीन से हम धान की कटाई भी कर सकते हैं और हम अनाज को डंडी से यानी उसके कटी हुए पौधे से अलग भी कर सकते हैं। तो इस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन मशीन। आइए देखते हैं कि कंबाइन मशीन कैसे कार्य कर सकता है। इस पर देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। बच्चों, ये आपके टीवी स्क्रीन पर आपको एक कंबाइन मशीन दिख रहा है जो हार्वेस्टिंग यानी कटाई और थ्रेशिंग यानी अनाज को भूसे से अलग करना, दोनों कार्यों को एक साथ कर पाता है। इसलिए बच्चों हम इसे कंबाइन मशीन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे वो रोलर घूम रही है और कटी गई फसलों में से भूसों को अलग करता है और अनाज नीचे गिरता है। इस मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स के कारण आप देख सकते हैं कि देखिए भूसे जो है कट के पीछे चली जाती है और अनाज नीचे गिर जाता है। ये बहुत ही खूबसूरती से अपना कार्य करता है। इस मशीन के सामने जो ब्लेड है, वो ब्लेड जो है अनाज को काटता है, उसके बाद वो पीछे को आता है, उसके बाद जो
भूसे हैं वो रोटेटिंग पार्ट्स के साथ में वो थ्रेशिंग होके अलग चला जाता है और सारे अनाज नीचे चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, ये भी हमारे जो मॉडर्न इन्वेंशंस है इनमें से एक है ये कंबाइन मशीन, जिससे कि श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है? थ्रेशर और हार्वेस्टिंग मशीन अलग अलग है तो कार्य अलग अलग होता है, लेकिन इसमें देखिए ये कंबाइन है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है और दोनों कार्य एक साथ हो पाता है। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज विनोइंग। अगला चरण है बच्चों विनोइंग। नाउ what is winnowing? Students, you know the grains obtained after threshing, also certain lots of chaff or husk remain in the grains, and to make the grains suitable for the use we need to remove this chaff from the grains, and this can be done with the help of the wean or the machine। बच्चों, विनोइंग का मतलब है सीधा सीधा मतलब है अनाज को भूसे से अलग करना। अब हम थ्रेशिंग करने के बाद भी कुछ भूसे हमारे अनाज के साथ में रह जाती है। इसका उपयोग करने से पहले हमें इन भूसों को अनाज से अलग करना होता है। और होता कैसे हैं? हम इसे वायु की मदद से जब ऊपर से उसे ड्रॉप करते हैं तो जो भारी अनाज है वो नीचे को इकट्ठा हो जाती है, और जब पीछे से हवा आती है तो जो हल्की वाली भूसा है वो उड़ जाती है। तो इस तरीके से हम विनोइंग यानी भूसे को अनाज से अलग कर सकते हैं। कैसे हम विनोइंग करेंगे स्टूडेंट्स? इस चीज को समझने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप। बच्चों, बीजों को थ्रेशिंग द्वारा भूसे से अलग करने पर भी कुछ भूसे रह ही जाते हैं, इसलिए हमें अनाजों का उपयोग करने से पहले अनाजों को दोबारा से भूसे से अलग करना पड़ता है, जिसे हम विनोइंग कहते हैं, और इसे हम हाथों से भी कर सकते हैं। जब अनाजों को ऊपर से वायु के प्रेजेंस में गिराया जाता है तो हल्की जो भूसे हैं वे उड़ जाते हैं और भारी अनाजे नीचे इकट्ठा हो जाता है, और इस भूसों को जानवरों के भोजन में उपयोग किया जाता है। Next students, we'll talk about the final stage or final step of agricultural practices, that is the storage। स्टूडेंट्स, स्टोरेज का मतलब है हिंदी में भंडारण। बच्चों, अभी हमने अपने अनाज को भूसे से भी अलग कर दिया। आपने देखा वीडियो में कैसे हम अलग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस अनाज को अच्छी धूप में सुखा देंगे। अगर हमने इन अनाज को धूप में नहीं सुखाया तो ये क्या होगा बच्चों? इसमें नमी होगी, जिसके वजह से लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स आएंगे और हमारे अनाज को लंबे समय तक हम इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अनाज खराब हो जाएंगे। इसीलिए हमें इसे धूप में सुखाना पड़ता है। एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर विनोइंग द ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू कीप देम सेफ एंड यूजेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज द 7th एंड द लास्ट स्टेप इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बच्चों, ये भंडारण जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का आखिरी चरण है। एंड हमें हमें धान को सुखाना क्यों चाहिए? इससे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे एंड इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, इसीलिए हम अपने अनाज को अच्छी तरह से सुखा के पैक करके स्टोर कर सकते हैं लंबे समय करने के लिए। और हम इसको स्टोरिंग कैसे करेंगे? आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि गनी बैग में, बहुत सारे गनी बैग में इसको डाल के बड़े बड़े ग्रैनरीज में इसको रख सकते हैं, या इसे हम साइलोस में भी रख सकते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये ग्रैनरीज और साइलोस को देख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट विल सी व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन किसे कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों,
जैसे आपने देखा कि हम किसान लोग जो है खेती बाड़ी करके बहुत सारे अनाजों को उगा के हम अपना पेट पालते हैं, हम और लोगों का पेट भी पालते हैं। हम अपने लिए तो उपयोग करते ही हैं और हम बाकी लोगों के लिए भी हम उसे बेच के बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल कर सकते हैं। बच्चों, ये भोजन का, मानव भोजन का प्रमुख स्रोत दो तरह के होते हैं, एक है पादप स्रोत, दूसरा है जंतु स्रोत। यानी अभी हमने जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखे थे, इसमें हमने भोजन का पादप स्रोत देखा, यानी एग्रीकल्चर करके कैसे हम बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी फूड सोर्सेज फ्रॉम एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, हमने ये देखा। अभी हम देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। बच्चों, जैसे हमको खेती बाड़ी करके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, बहुत सारी चीजें हमें मिलते हैं ना, वैसे ही जानवरों को पाल के हमें बहुत सारे भोजन जो जानवर स्रोत से प्राप्त होते हैं वे मिलते हैं, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध, घी, ये सारे भोजन जो है जंतु स्रोत से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, मेनी फार्मर्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द लिवलीहुड इन इंडिया। हमारे भारत देश में बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीविका को चलाने के लिए जंतु पर निर्भर होते हैं, जंतु का पालन करके। एंड जब द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग डोमेस्टिक और फार्म एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर नीड्स ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों, जब हम बड़े पैमाने पे इन जंतुओं को पालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सके, तब इसे हम पशुपालन कहते हैं। हम किन किन जानवरों को अपने घरों में या फार्म में पाल सकते हैं, जैसे कि गाय हो गए, बफेलोस हो गए, बकरियां, गोट्स हो गए, पिगरी फार्मिंग कर सकते हैं, एंड पोल्ट्री में हम मुर्गियां पाल सकते हैं, बतख पाल सकते हैं। तो बच्चों, हम इन सभी जानवरों को बड़ी मात्रा में पाल सकते हैं। इनसे हमें बहुत सारे भोजन प्राप्त होंगे, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे, एंड हम इसे बेचकर अपनी जीविका भी किसान चला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री को समझने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप। जंतु भी हमें बहुत सारे भोजन प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनका प्रमुख भोजन मछली होता है। जैसे फसल उत्पादन के लिए हम फसलें उगाते हैं, वैसे ही जंतु स्रोत के भोजन उत्पादन के लिए हम घरों में या फार्म में जंतुओं को पालते हैं और उनका देखभाल भी करते हैं। और बच्चों, जब यह बड़े पैमाने पे किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। And now students, we'll just have a quick look on what we learned today. We have learned that what are weeds. Next, we have seen the weeding and its method, why it is important to do weeding. We have talked about all these things. Next, we have seen what is harvesting, what is threshing, what is winnowing, and what is storage. How do we do the storage of food grains for a longer time? And finally, we have seen animal husbandry. Through the animals also, we get lots of products for our livelihood. So students, with these topics we have ended our chapter, that is the crop production and management. This is a bit lengthy chapter, so we have divided this chapter into 3 parts and we have completed the 3 parts. And students, will meet in our next class with a new lesson. Until then, stay home, stay safe and keep learning.